Good morning, everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday we have completed our revision work of chapter 10. So, today let us move forward to our next chapter. As you can see, which is our next chapter, The Little Kite Learns to Fly. As you all know, what is kite? Everybody knows about the kite, okay? This is your kite, okay? You all have seen the kites? Yes, you all have seen the kites. I think so. आप सबने काइट को देखा होगा. Do you like to fly the kite? Tell me, do you like to fly the kite? Yes, all children like to fly the kite. Okay, I also love to fly the kite, but I don't know how to fly the kite. ओके मुझे भी पसंद है काइट फ्लाई करना, लेकिन आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है हाउ टू फ्लाई काइट, कैसे फ्लाई करते. बट देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, है ना, इन ऑल ऑफ यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट हाउ टू फ्लाई द काइट. आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि कैसे काइट उड़ाई जाती है. स्पेशली बॉयज़ नो अबाउट हाउ टू फ्लाई द काइट. एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, am I correct? I am correct. Okay, so first see what is given here. On which of the following festivals kites are flown? Here are given 4, 1 2 3 4. You have to take one of them. इनमें से जिस occasion पे हम काइट को फ्लो करते हैं, you have to take. इसमें से आपको जो सही लगे इनमें से आप उस बॉक्स में क्या करेंगे, जो बॉक्सेस हैं इन बॉक्सेस में टिक करेंगे. दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यू कैन सी हियर देयर आर सो मैनी काइट्स, बिग काइट, small kite. Okay, so in this chapter we will read that how little kite learn to fly. Meaning of the chapter is कि एक little kite जो है वो कैसे fly करना सीखती है. That is clear. So who is the composer of this chapter? As first you see the name, Catherine Pyle. Catherine Pyle इज द कंपोजर ऑफ द पोएम. किसने कंपोज की है पोएम, किसने लिखी है? कैथराइन पायले ने लिखी है. कैथराइन पायले. ओके, सो सी what is given about her. She was one of well-known children's book author who has penned around 45 children's book. That means कि जो ये कैथरीन पायले हैं, इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है. किस चीज़ के लिए ये जानी जाती हैं? चिल्ड्रंस बुक ऑथर, है ना. ये चिल्ड्रंस के बारे में ही बुक लिखती थी, तो उसके ऑथर के रूप में फेमस हैं. और इन्होंने क्या किया था, लगभग कितनी 45 चिल्ड्रंस बुक शी हैज़ रिटन. 45 चिल्ड्रंस बुक. शी गॉट फर्स्ट मेजर रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क द काउंटर पेन फेरी. और जो सबसे ज़्यादा इनको रिकॉग्निशन मिला था वो इनके इस वर्क के लिए मिला था. दैट मीन्स फॉर दिस बुक द काउंटर पेन फेरी. Okay, so here you can see, here are given some words as nodded, tranquil, stirred, sight, steadily, thrilled. Okay, these are given the new words. Okay, so I will tell you what the meaning of these words. Nodded. What is the meaning of nodded? Nodded means shook head slightly. What is the meaning of nodded? Nodded means shook head slightly. ठीक है, सर को हेड को, है ना, हिलाना स्लाइटली. ओके, ट्रांक्विल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांक्विल? ट्रांक्विल मीन्स पीसफुल एंड काम. दीज ऑल वर्ड्स यू ऑल विल सी इन द पैरा. सो ट्रांक्विल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांक्विल? ट्रांक्विल मीन्स पीसफुल एंड काम. देन नेक्स्ट वन इज स्टिर्ड. स्टिर्ड मीन्स मूव्ड स्लाइटली और लाइटली. Stirred, moved slightly or lightly. Okay, meaning of stirred. Then sight means view. What is the meaning of sight? Sight means view. Then steadily means even or regular movement. What is the meaning of steadily means, what is the meaning of steadily means even or regular movement. Okay, then thrilled
Thrilled means excited. Okay, thrilled means excited. So here you all have seen about the author, and you also have got new words of this poem. Now let us see. So first thing is that everybody knows about the kite. सबको पता होगा kite. अच्छा, ये तो kite की बात हो गई. Tell me one thing. आप लोगों में से कितने लोगों को काइट उड़ानी आती है ना, फ्लाई करनी आती है? हाउ मैनी ऑफ यू नो हाउ टू फ्लाई द काइट, है ना? कुछ होंगे, बॉयज़ को स्पेशली आती है ना हाउ टू फ्लाई द काइट, बॉयज़ नो, बॉयज़ जानते हैं कैसे काइट उड़ाई जाती है. तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा. लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट टू फ्लाई द काइट, देन इन फर्स्ट टाइम यू ऑल आर परफेक्ट टू फ्लाई द काइट. आप सब परफेक्ट होते हैं फर्स्ट टाइम जब आप फ्लाई करते हैं किसी काइट को, तो आप परफेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं. सो यू विल लर्न हाउ टू फ्लाई द काइट, है ना? तो आप पहले क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे. जो भी पहले बार काइट उड़ाना सीखता है, फ्लाई करने के लिए प्रैक्टिस करता है, तो पहले क्या करता है, स्टार्टिंग में वो कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको थोड़ा सा भी मूव नहीं करा पाता है. फिर वो धीरे धीरे सीखता है. किससे? फ्रॉम दियर एल्डर, है ना? अपने एल्डर्स से सीखता है. तो उसके एल्डर उसे ट्रेंड करते हैं, है ना? क्या करते हैं? दे गिव देम ट्रेनिंग. एल्डर जो होते हैं हमारे, हमको ट्रेनिंग देते हैं, है ना? देन वी लर्न स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप हम सीख जाते हैं. इन द सेम वे इन दिस पोएम यू ऑल विल सी हाउ अ लिटिल काइट लर्न दैट हाउ टू फ्लाई, है ना? सो एक्चुअली बिग काइट ऑलरेडी नो हाउ टू फ्लाई, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसने सीखा था. बिकॉज शी हैड लर्न व्हेन शी वॉज लिटिल. जब वो छोटी थी तब उसने सीखा था. नाउ शी बिकम ओल्ड. ओके, अब वो पुरानी हो गई है ना. शी बिकम बिग, अब वो बिग हो गई. शी बिकेम बिग, बिग हो गई है, बड़ी हो गई है. तो अब वो कैसे उड़ाएगी काइट, ठीक? सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर, एंड यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है अकॉर्डिंग टू यू. जब फर्स्ट टू टेल मी, also I will ask this question in comment box, but firstly I will ask you, first thing tell me कि in which festival, okay, in which festival you all fly the kite. आप किस फेस्टिवल में काइट उड़ाते हो, ठीक है? जिस फेस्टिवल में आप काइट उड़ाते हो, यू ऑल विल राइट द नेम ऑफ दैट फेस्टिवल. आप सबको पता होगा कब उड़ाई जाती है ना. ओके, सो लेट अस मूव टू अवर poem. I never can do it, the little kite said. In this para, firstly here are given, as you can see, all boys are flying the kite and they all are very happy ना. आपके फेस पे ऐसी स्माइल होती है जब आपको काइट फ्लाई करनी होती है ना, और जब पढ़ाई करनी होती है, जब काइट फ्लाई करनी होती है ना, कोई गेम खेलना होता है तो आप ऐसे हंसते हो ना, और जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे भी करते हो, है ना. सो आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड. लिटिल काइट क्या कहती है? व्हाट शी सेड. लिटिल काइट कहती है आई नेवर कैन डू इट, मैं कभी नहीं कर सकती हूँ. जब आप कभी कभी कुछ नया सीखते हो, सपोज कोई ऐसा वर्क है, सपोज आप साइकिल चलाना सीखते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करते हो चलाना तो गिर जाते हो, फिर आप क्या कहते हो? गिव अप कर देते हो. कुछ लोग होते नहीं, मुझे नहीं चलाना, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा ना. इन द सेम वे आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड. लिटिल काइट कहती है मैं ये कभी नहीं कर सकती हूँ. एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड. जब वो देखती है कि और जो काइट्स हैं वो बहुत ऊपर तक जानी, उसके हेड के ऊपर हैं, है ना, सर के ऊपर से सब उड़ रही हैं, है ना, हाई उड़ रही हैं. तो व्हेन when she saw such type of things, then she said I never can do it. तब वो क्या कहती है कि मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती हूँ. I know I should fall if I tried to fly. और वो कहती है मैं जानती हूँ, I know I should fall if I tried to fly. अगर मैंने कोशिश की उड़ाने की,
उड़ने की। अब वो तो खुद उड़ेगी ना, वो थोड़ी ना उड़ाएगी ना, क्योंकि वो खुद क्या है, काइट है। तो वो बोलती है अगर मैंने उड़ने की कोशिश की, बिकॉज शी वॉज एफ्रेड, बिकॉज शी वॉज लिटिल, अभी वो छोटी है तो वो डर रही है ना, धीरे ही धीरे सीखते हैं। अब हम जब सबसे छोटे होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी कैसे होते हैं, वो लेटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बैठना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उठना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होना, फिर धीरे धीरे चलना, और फिर जब हम लोगों के जैसे हो जाते हैं तो वो दूसरे को भी चलवा देना, है ना, दूसरे को भी फिंगर पकड़ के, जो छोटे बच्चों को भी हम लोग अब चला सकते हैं ना। तो सेम वे में काइट का भी सेम प्रोसीजर होता है। तो काइट भी अब छोटी है, वो डर रही है और कहती है जब मैं अपने ऊपर से जाती हूँ, इन काइट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है अगर मैं ट्राई करूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं गिर जाऊँगी। ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई। तो आपके बड़े आपसे क्या कहते हैं जब आपको सीखना स्टार्ट करते हो और गिव अप करना चाहते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तो आपके बड़े आपसे क्या कहते हैं, आपके बड़े आपसे कहते हैं ट्राई सेट द बिग काइट। बिग काइट कहती है ट्राई करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। और अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो मुझे ये डर है ऐसा ना हो कि तुम कभी नहीं, अगर आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे वो कितनी भी टफ हो, एज यू कैन सी योर सिलेबस आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आप एक ही चीज़ को कई बार लर्न करते हो, कई बार पढ़ते हो, देन यू विल गेट ऑल द नॉलेज अबाउट दैट, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो वही कहती है, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। आप कभी नहीं लर्न कर पाओगे अगर आप ऐसे ही करोगे कि मैं डरोगे और कहोगे कि सब उड़ रहे हैं, मुझे लगता है मैं कभी नहीं, ऐसी बातें करोगे, या आप ट्राई नहीं करोगे। ट्राई प्लीज़ ट्राई, वो बोलता है, जो बड़े हमको समझाते हैं ना, तो कहते हैं अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो फिर कभी उड़ नहीं पाओगी। बट द लिटिल काइट सेड आई एम एफ्रेड आई विल फॉल। अब लिटिल काइट क्या कहती है, जब बिग काइट उसे समझाती है तो वो कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड, बिग काइट जो होती है नोडेड शूक हेड स्लाइटली, धीरे से सर ना के इशारे में, नहीं जैसे सर हिलाया जाता है, आह वेल गुड बाय। तो कहती है, मतलब समझाती है, पहले जब वो नहीं समझती तो आ करके कहती है आ वेल, ओ ठीक है, अच्छा गुड बाय, उसको गुड बाय बोल देती है। आई एम ऑफ, और कहती है मैं चली, मैं जा रही हूँ, क्योंकि ही वॉज गोइंग टू फ्लाई, क्योंकि वो उड़ने के लिए जा रही होती, वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी अब। सो एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंकल स्काई, और वो किसकी तरफ बढ़ जाती है, ट्रैंकल मीन्स पीसफुल एंड काम, और वो शांत स्काई की तरफ क्या होती है, बढ़ जाती है, उड़ जाती है। ओके, सो इन दिस stanza you all have seen that what happened, a little kite was trying to was very fond of to fly in the high in the sky, but she was afraid to fly, and her big kite explained her and motivate her, but she was not agree to listen anything, and she was only afraid. So what happened the next, and how will she able to fly, we will learn in the next day. Okay, in next day. So that is enough for today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day. Tomorrow we will see the further part of the poem. Thank you for watching the video.